Hello dear student, this is Salma Aftab standing in front of you, and today we are going to discuss our first chapter for the class 10, that is our periodic properties and the variations in their properties. So now let's start the properties. These are the properties. In the last class we have discussed, these are the overall properties, that is your atomic size, metallic character, non-metallic character, ionization potential, electron affinity and electronegativity. Okay, but in the previous classes we have a detailed discussion on the atomic size. Am I right, student? Atomic size, metallic character and non-metallic character. These properties already we have discussed. Okay, now today we will discuss from our fourth periodic properties, which is very much important, that is your ionization potential. Okay, so now let's start the properties, that is our ionization potential. So note down, the fourth property is your ionization potential. So tell me, student, what do you mean by ionization? First of all, you must know the meaning of ionization. Then you will have a knowledge of ionization potential. The word ionization comes from the word that is your ions. Okay, ये जो word ionization potential आया है, it comes from your ions. And what is ion? Ions must have either positive charge or negative charge. आयंस के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है और या तो नेगेटिव चार्ज होता है. सो द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द atom which have the tendency to lose its electron, but don't get confused with the metallic character, because metallic character के भी यही definition है. Because I want to get you understand, समझाना चाह रही हूँ, that's why उसके रेफरेंस में बात कर रही हूँ. ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक न्यूट्रल मेटल आयन है, एक न्यूट्रल मेटल है या न्यूट्रल गैस है. इफ वी आर प्रोवाइडिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट विल कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव आयन. That is called as ionization energy. So the definition of ionization potential is the amount of energy required to remove an electron from its neutral atom. एक न्यूट्रल एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, that is called as ionization potential. Okay, is it clear? So the amount of energy required to remove an electron from its neutral atom. This is the main difference. अगर suppose we have any metal in gaseous state, this one is your metal in gaseous state, and we just provide ionization potential or ionization energy, both are same. Okay, now it will convert into the M plus ion and plus one electron. That will be the overall reaction. कि this one is your metal. ठीक है, suppose कोई metal है, it is in the gaseous form, and we are providing some amount of energy, and that energy is called as ionization energy, and this metal will convert into the positive ion. And this electron which just remove out from the metal. This is the overall reaction for the ionization potential. If we write the same reaction, M plus I ionization energy, we will write 1 2, then it will convert into the M plus 1 electron. We can write like this also,
this one we can write like this, m plus 2 electron. Okay, this one is the first ionization energy and this one is the second ionization energy. Just try to understand. It means कि अगर किसी भी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी रिक्वायर्ड, जितनी भी एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, तो अगर इस मेटल से जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी टू कन्वर्ट इनटू द m प्लस आयन, डेफिनेटली द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी we need greater amount of ionization energy to remove from this metal ion. जितनी एनर्जी यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे उससे कहीं ज्यादा एनर्जी लगेगी. Why the amount of, it means ionization and second ionization energy is greater than first ionization energy. Always ये याद रखो, बिकॉज ऑलरेडी इट इज पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, सपोज वी हैव अ न्यूक्लियस, कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, दिस वन इज योर न्यूक्लियस एंड दिस वन इज योर फर्स्ट शेल एंड दिस वन इज योर सेकेंड शेल. ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम आयन. ठीक है, सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11. इन फर्स्ट शेल वी हैव 2 electrons. The electronic configuration is just like this, that is 2 8 1. Okay, in first shell we have 2 electron and in the second shell we have 8 electron. Already we know that 2 to 4 6 and this one is your 2, this is your 8 electrons. Okay, 8 electrons. In third shell we have this one is the third shell and this one is the last one, that is your first shell. So to remove its one electron, we first of all, this one will be the ionization energy 1, first ionization energy, and after losing its one electron, it will convert into the Na plus ion, because we know that number of electron is equal to the number of proton. As the number of electron decreases and due to the increase in the number of protons, because the protons are positive in charge, it acquires positive charge. That's why we write Na positive. नाउ तो यहां पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. नाउ आफ्टर दैट यहां से इसको एक और इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया. ठीक है, नाउ वी जस्ट रिमूव इट, दैट इज योर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. एक इलेक्ट्रॉन तो गया. ओके, इज इट क्लियर? नाउ ऑलरेडी इट इज Na प्लस में हो गया बिकॉज इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन. नाउ इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन. ओके, Now come to the second part, that अब इसके बाद में क्या अगर इसमें और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन यहां से न्यूट्रल, नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8. सो द आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर. यहां पे अब क्या होगा, बिकॉज द नंबर, ये शेल भी छोटी हो जाएगी, होगी ना. ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा. अब यहां पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लगा रहा है ENC, दैट इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है, क्या इट विल अलाउ टू रिमूव इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन? क्या वो अलाउ करेगा? अलाउ करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी. We have to provide some extraordinary energy. That's why ionization energy of second electron is greater than the ionization energy of first one. Clear है? Clear है बेटा? So now what are the trends in the groups and the periods? We have to study कि ग्रुप्स में क्या चेंजेस आएंगे, ग्रुप्स एंड पीरियड्स. ठीक है, तो ग्रुप्स में क्या होगा, एज वी मूव डाउन, एक पीरियोडिक टेबल, आई हैव अपलोडेड अ वीडियो रिगार्डिंग द पीरियोडिक टेबल. और पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा है कि नहीं बच्चों? इफ यू डोंट हैव स्टडीड, इफ यू डोंट नो अबाउट द पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी. ठीक है,
तो यहाँ पे क्या कर लो, अपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से लर्न कर लो, यू मस्ट लर्न बाय हार्ट। सो कम टू द ग्रुप्स एंड पीरियोडिक टेबल इज जस्ट लाइक दिस, कुछ ऐसा डायग्राम है। एक नॉर्मल, अभी पूरा पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वी विल ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। एक सिंपल एक हमें आइडिया लेना है, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल, एक इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है कुछ, ठीक है। तो ऐसे जब हम जाएंगे और ऐसे जब जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ये हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्या, ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ग्रुप की बात कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, पीरियड की बात कर रहे हैं। कहेंगे कि मैम पीरियड तो 7 ही है, तो पीरियड ऐसे ही तो है ना, ठीक है। दिस वन इज योर पीरियड एंड दीज आर द ग्रुप्स। तो अब ग्रुप्स में क्या चेंजेस आएंगे आयनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में एंड पीरियड्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, याद है एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, दो चीजें, दो फैक्टर हर जगह रोल प्ले कर रही है, दैट इज योर एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। सब जगह पूरे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अब तक ये डिस्कस किया है और अभी भी और आगे भी डिस्कस करेंगे, दैट इज योर ऑल द पीरियोडिक प्रॉपर्टी विल बी स्टडीड with respect to the atomic size and nuclear charge. तो atomic size और nuclear charge already we have discussed. तो as we move down the group, the atomic size increases. ये तो पता ही है, atomic size increases. यहां से क्या जा रहा है, जब हम नीचे की तरफ, तो atomic size क्या कर रहा है, increase कर रहा है. So if the atomic size is increasing, अगर किसी का एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सपोज एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा इस तरीके से, फर्स्ट शेल, इट मींस यहां पे 2 शेल आ जाएंगे, थर्ड में थर्ड, देन इन फोर्थ वन 1 2 3 4। तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो यहां पे हमें जो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी टू कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव आयन, दैट विल बी E1। फिर यहां पे इसको सपोज आई जस्ट रिप्रेजेंट विद IE2 IE3, तो विच विल बी ग्रेटर, किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसमें ना, बिकॉज इट्स साइज इज स्मॉलर, साइज छोटी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसे जाने नहीं देगा, बाहर निकलने नहीं देगा। दैट्स व्हाई द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन is maximum in the first shell. So as the size of the atom increases, as we move down the group, the ionization potential decreases. आयोनाइजेशन डिक्रीज होगा ना, यहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, वो खुद ब खुद निकल जाएगी, बिकॉज यहां से डिस्टेंस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, और इतना डिस्टेंस वो कवर नहीं कर पाएगा कौन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट्स व्हाई यहां पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी IE4, दैट विल बी द लीस्ट इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन। ओके, सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ट्रेंड्स याद रखो। और क्वेश्चन यहाँ पे इस चैप्टर से, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, द ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कैसे वो फॉलो कर रहा है इन द ग्रुप्स एंड इन द पीरियड्स। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है इससे रिलेटेड, इन टॉपिक से, सिर्फ इस फॉर्म में, ग्रुप्स और पीरियड्स के फॉर्म में, और इसको तो लिख लो बेटा, ये VVI, एक तो क्वेश्चन आना कंफर्म है इस टॉपिक से। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, द एटॉमिक साइज increases, hence the ionization potential या ionization energy decreases. This is the symbol of decrease. ठीक है, अभी कितना लंबा लिखे, that's why I have written like this. ठीक है, this is the symbol of, for me this is the symbol of increases and this one is the symbol of decreases. ठीक है, हो गया ये। Now come to the periods. As we move from left to right, यहां से अगर यहां तक जा रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ साइज डिक्रीज कर रही थी, साइज डिक्रीजेस, यहां से क्या हो रहा था, साइज डिक्रीज कर रहा था, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। ठीक है,
और साइज क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी. तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स increases, number of electrons increases, so the ionization energy increases. क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना और भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस या नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, बिकॉज एटॉमिक साइज, बिकॉज एटॉमिक, यहां पे लिख लो ताकि क्लियर हो जाए, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, दिस इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल. नाउ कम टू द फिफ्थ वन, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो नेक्स्ट, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहले तो ये बता दे बेटा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर किसी के रिस्पेक्ट में किसी भी प्रॉपर्टीज को समझोगे ना तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अप्रॉक्स जस्ट अपोजिट ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, ये जस्ट थोड़ा थोड़ा उसके अपोजिट में है. ठीक है, अपोजिट में है. अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. पहली बात तो ये समझो कि वहां पे एनर्जी क्या था, रिक्वायर्ड था. इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when any electron added in any neutral atom. अगर कोई न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी, released, amount of energy released by any neutral atom when an electron is added. ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है किसी भी न्यूट्रल एटम में एंड इट कन्वर्ट इनटू द नेगेटिव आयन, दैट इज योर अनायन, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज वी हैव एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज इन द गैसियस फॉर्म, प्लस one electron when added, it will convert into the X minus and plus some amount of energy, and this energy, और ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कितनी है, जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी उतनी ज्यादा ये क्या, द मोर द टेंडेंसी दे हैव टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, द मोर दे विल रिलीज द एनर्जी. क्लियर? जैसे सपोज टेक एन एग्जांपल, क्लोरीन. क्लोरीन क्या है, नॉर्मल एटम है. ठीक है, क्लोरीन when we add electron it will convert into the Cl minus and it release का सिंबल होगा माइनस अप्रॉक्स 314 किलो जूल पर मोल. ये एनर्जी रिलीज करता है 314 किलो जूल पर मोल in the case of chlorine, and this is the electron affinity. This is the electron affinity. Now next one is your oxygen. अगर ऑक्सीजन में we are adding one electron, ये न्यूट्रल है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, क्लोरीन इज ऑल्सो इन गैसियस फॉर्म, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट इनटू द O माइनस एंड यहाँ पे जो एनर्जी वो रिलीज करेगा, दिस इज द सिंबल ऑफ रिलीज. ये माइनस नहीं हो रहा बेटा, इट इज रिलीजिंग द एनर्जी, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस इज द सिंबल ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो नेगेटिव आयन रिप्रेजेंट द रिलीज. ठीक है, means it is forming the 169 I think 69 kilojoule per mole in the case of oxygen atom. ठीक है,
This is the electron affinity. Now come to the last one. I think ये पार्ट हाँ सॉरी ये भूल गए, पीरियड और ग्रुप्स के ट्रेंड्स में कैसा होगा ये पीरियड एंड ग्रुप. पहले ग्रुप लिख लो, ग्रुप एंड पीरियड्स. नाउ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज वी मूव डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप में अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज ऑफ द एटम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. साइज से याद रखो हर चीज को, साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप. तो साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. और अगर साइज इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे शेल्स की साइज, एटम की साइज इंक्रीज करती रहेगी तो क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन, क्या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, नहीं. इट मींस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, move down the group, as we move down the group, due to the increase in the size of the atom, the electron affinity will decreases. Because size क्या हो रहा है, साइज बड़ी होती चली जा रही, तो अब वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, बहुत ज्यादा नहीं. दैट्स व्हाई as we move down the group the electron affinity will decreases. Now come to the period. As we move from left to right, left to right जा रहे, it means we are talking about the period. As we move from left to right, then electron affinity पे क्या फर्क पड़ेगा, because the size is increase, size क्या हो रहा है, decreases, because size of the atom is decreasing. तो electron affinity क्या होगा, obviously increases. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ठीक है, नाउ कम टू द 6th पॉइंट, दैट इज योर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ओके. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या था कि एनर्जी क्या कर रही थी, रिक्वायर कर रही थी टू कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव आयन. ठीक है, शॉर्ट में अगर हम यहाँ पे लिख ले कि ये कन्वर्ट हो रहा था, एनर्जी रिक्वायर हो रही थी, एनर्जी रिक्वायर क्या हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा था पॉजिटिव आयन में. इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट इज कन्वर्टेड इनटू द नेगेटिव आयन. यहाँ पे क्या हो रही थी, एनर्जी रिलीज कर रही थी, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही थी, जरूरत पड़ रही थी, रिक्वायर कर रही थी. नाउ कम टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मीन्स द इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट द अदर इलेक्ट्रॉन. एक एटम के पास जो टेंडेंसी है, the tendency of an atom to attract other electron towards itself to complete its octet, that is called as electronegativity. Very simple. ठीक है, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे पूरी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है. इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सम एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसी के बेसिस पे वो आसपास क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट करता रहता है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द electron, to attract the electron towards itself. ठीक है, यहां पे एनर्जी की कोई बात नहीं कर रहा है. ठीक है, बट आयंस में कन्वर्ट होगा ऑब्वियसली, कि अगर वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करा देन इट विल कन्वर्ट इनटू द आयंस. बट यहाँ पे एनर्जी रिलीज कर रहा है या एनर्जी गेन, एनर्जी उसको जरूरत है, एनर्जी गेन कर रहा है, और एनर्जी, और इट इज रिलीजिंग द एनर्जी, दैट डजंट मैटर. ठीक है, द टेंडेंसी टू ट्रैक द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. ठीक है, तो ऑक्टेट में, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट इज योर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. तो याद है कुछ हमने कुछ बताया था कि यू जस्ट लर्न, यहां पे कुछ एटम था 17th ग्रुप में. 17th ग्रुप में कौन कौन से एटम्स थे, कौन कौन से एलिमेंट्स थे, कुछ याद है? द एलिमेंट्स प्रेजेंट
यहाँ पे इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और आई एम राइटिंग द इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. These are the most electronegative elements that is also called as halogen atoms. Halogen को याद करने को कहा था कि इसको तो रट डालो कि कौन कौन से एलिमेंट है और सीक्वेंस वाइज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सो फ्लोरीन इज द मोस्ट, नोट डाउन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फ्लोरीन is the most electronegative element. ओके, और यहां पे कौन सा एलिमेंट था, कुछ याद है? As we move down the group, the electronegativity decreases. तो ग्रुप और ट्रेंड्स के उसमें आ जाओ, टर्म में आ जाओ, बिकॉज साइज क्या, और ऑब्वियस सी बात है साइज इंक्रीज कर रहा है, तो साइज जब इंक्रीज करेगा तो उसके पास गेन करने की टेंडेंसी नहीं रह जाएगी. तो इन टर्म्स ऑफ ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases. Okay, the electronegativity decreases, and as we move from left to right, the electronegativity obviously वहां पे साइज क्या करे, डिक्रीज करे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. दैट्स वाई ये फ्लोरीन यहीं पर आएगा. ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे नोबल गैस है, दिस वन इज योर नोबल गैस. तो नोबल गैस के जस्ट पहले ऑक्टेट जिसकी कंप्लीट नहीं है, तो फ्लोरीन वहीं पे आ रहा है, फ्लोरीन यहां पे आ रहा है. दैट इट मींस फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और यहां का जो एलिमेंट है दैट इज योर, याद है ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट था यहां पे, भूल गए? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीशियम. सो these elements are the least electronegative element. Cesium and francesium are the least electronegative element. Completed? So electronegativity भी यहाँ पे क्या हो गया, complete हो गया. So I hope student कि आप लोग को समझ में आया होगा what I am teaching you and what I am explaining you. I hope कि you all have understood. Clear है कि what are ionization potential, electron affinity और electronegativity. If you have any queries regarding the topic, just write in the comment box. Okay बेटा, अगर कहीं पे कोई भी डाउट है, if you have any doubt, just write it down in the comment box. Okay, so take care of yourself, stay home, stay safe, and goodbye.